Welcome to EduSet presentation. This is Deepmala Sharma, lecturer in English, bringing forth before you a thought-provoking poem, Aunt Jennifer's Tigers, composed by Adrienne Rich. Dear students, in today's lecture, first of all, we'll discuss about the poet Adrienne Rich. Then, I'll give you a brief introduction of the poem. After that, we'll understand the line-by-line, stanza-wise explanation of the poem, wherein I'll also give you all the meanings of difficult words which will come across the poem. Later, we'll discuss all the literary devices, stanza-wise, used by the poet in the poem. And finally, we'll discuss the theme of the poem and the symbols used by the poet in it. So, dear students, let's get started. First of all, let's have a brief introduction of the poet. Adrienne Rich, 1929 to 2012, was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences. Adrienne Rich एक अमेरिकन पोएट, essayist और feminist हैं. She is one of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century. आप देख सकते हैं 1929 to 2012 is the lifespan of Adrienne Rich, which means कि ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं या इस पोएट ने जो भी क्रिएशंस लिखी हैं वो प्रेजेंट टाइम की नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग अगो जो पीरियड था उसके बारे में है. Here in this poem, she talks about a woman's experiences in her married life. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men. बेसिकली एड्रियन रिच इस पोएम में पोर्ट्रे कर रही हैं एक ऐसे वुमन को जो अपनी मैरिज से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है. हियर शी वांट्स टू डेलिनिएट मेल डोमिनेटिंग पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी पुरुष प्रधान समाज जिसमें औरतों को पुरुषों के बराबर इक्वल राइट्स नहीं मिलते एंड दे आर ऑलवेज इल ट्रीटेड बाय देयर मेल काउंटरपार्ट्स. तो यही बेसिक थीम है इस पोएम का. Now, let me give you a brief introduction of the poem to you. Aunt Jennifer's Tigers 1951 में लिखी गई पोएम थी ये. तो आप सोच सकते हो कि 1951 जो ये ईयर है, it is long time ago. 1951 यानी कि अब से almost 70 years पहले की बात कर रहे हैं हम. At that time, women did not have freedom. They did not have money. They were not given the right to go out and work. Okay? हो सकता है कि ऐसी कुछ औरतें होंगी जिनको ये अधिकार होंगे, कुछ फ्रीडम होगी, उनके पास पैसा होगा, उनके पास बाहर जाकर काम करने के लिए राइट्स होंगे. बट बाय एंड लार्ज वी कैन से कि ऐसी बहुत सी विमेन थी, फीमेल्स थी जिनके पास ये सब राइट्स नहीं थे. ओनली मेन हैड पावर. दे वर टू मेक द डिसीजंस इन द फैमिली. They were the boss of the family. And this structure basically is called patriarchy. देखिए बेटा, आपको मैं ये सब वर्ड्स इसलिए दे रही हूं ताकि आप एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर कर पाओ. अगर आप सिंपल वर्ड्स लिखेंगे, सिंपल आइडियाज लिखेंगे, तो हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स ना मिले. तो आप जैसे मेल डोमिनेंस, पेट्रियार्की एंड वेयर मैन इज द बॉस, या हम बात करें फेमिनिज्म की जहां पर विमेन दे फाइट फॉर देयर राइट्स, फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज जस्ट लाइक देयर मेल काउंटरपार्ट्स. तो इस तरह के अगर आप वर्ड्स को यूज करेंगे व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स, व्हाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर्स, डेफिनेटली योर स्कोर बेटर मार्क्स. तो देखिए इंट्रोडक्शन टू द पोएम. द पोएम Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life that a woman experiences. तो ये जो पोएम है Aunt Jennifer's Tigers, इसके अंदर पोएट बात कर रही हैं एक ऐसी लेडी के मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंसेस की जो उसे रेस्ट्रिक्ट करती थी, उसे लिमिटेड कर देती थी. मींस उसके पास पूरे के पूरे राइट्स या फ्रीडम नहीं थी. The protagonist of the poem Aunt Jennifer represents women all over the world,
particularly the women in America during the 1950s. तो जो इस पोएम की प्रोटेगोनिस्ट है, मीन सेंट्रल कैरेक्टर हैं, दैट इज आंट जेनिफर. अब यहाँ पे केवल आंट जेनिफर की अकेले बात नहीं हो रही, बल्कि आंट जेनिफर जो हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी विमेन हैं, किस टाइम पर, 1950s में. ओके, और पर्टिकुलरली द विमेन इन अमेरिका, उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उन सबकी जो सिचुएशन है वो सिमिलर थी आंट जेनिफर की जो सिचुएशन यहाँ पर डिपिक्ट की है पोएट ने उसके साथ. शी रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ विमेन हु वर कॉट अंडर द ऑप्रेसिव हैंड ऑफ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. और वहां पर उस समय पेट्रियार्की थी, मीन्स पितृसत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज था. कहने का मतलब है कि एट दैट टाइम मेन वर द बॉस ऑफ द फैमिली. ओनली जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो सब पुरुष के हाथ में थी, ना कि महिला के हाथ में. द पोएट एड्रियन रिच through the simple lines of the poem delineates a woman's struggles with expression and rebellion. और इस तरह से जब पोएट आंट जेनिफर की बात कर रही हैं तो वो ये दिखाना चाहती हैं कि किस तरह से एक जो मैरिड लाइफ में एक वुमन जी रही है वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, तो किस तरह से कोशिश करती है अपने स्ट्रगल्स को एक्सप्रेस करने की, और एक तरह से वो किस तरह से विरोध जताना चाहती है इन सब चीजों का. The 3 quatrains, 4-line stanza expose the desolating effects of patriarchy. और 3 stanzas हैं इस पोएम में, और हर एक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं. तो वी हैव बेसिकली 3 quatrains here, एंड ये तीनों के तीनों क्वाट्रेन्स में हमें पता चलता है कि किस तरह से पेट्रियार्कल जो सोसाइटी थी उसका डिपिक्शन किया है एड्रियन रिच ने. In the first stanza, the poet first introduces us to Aunt Jennifer's dreams. In the second stanza, we are introduced to the reality of Aunt Jennifer's world. The third stanza is a narrative of the future. तो आप देखिए, सबसे फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें हमें पता चलेगा कि आंट जेनिफर बेसिकली क्या चाहती हैं. ओके, उनकी ड्रीम्स क्या हैं. सेकेंड स्टेंजा में हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, आंट जेनिफर की रियलिटी क्या है, यानी कि एक्चुअली जो है उसका जो ड्रीम है उससे जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो कितनी कॉन्ट्रास्ट में है. द थर्ड स्टेंजा इज अ नैरेटिव ऑफ द फ्यूचर. एंड फाइनली थर्ड स्टेंजा में पोएट ये बताना चाहती हैं कि फ्यूचर में आगे जाकर आंट जेनिफर के साथ क्या होगा. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. स्टेंजा फर्स्ट. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब देखिए, यहाँ पोएट एड्रियन रिच बात कर रही हैं एक लेडी की जिनका नाम है आंट जेनिफर. और बेसिकली जो आपकी पोएम का टाइटल है दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स. तो यहाँ पर बात हो रही है आंट जेनिफर के टाइगर्स की. अब ये टाइगर्स आंट जेनिफर से कैसे बिलोंग करते हैं वो देखते हैं. दे प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. प्रांस का मतलब आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स. यानी कि जब कोई चलता है या हम कह सकते हैं कि उछल उछल के चलता है, दैट इज प्रांस, राइट. तो जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं दे आर प्रांसिंग. प्रांसिंग का मतलब दे आर जंपिंग, दे आर मूविंग विद स्प्रिंगी स्टेप्स. ओके, कहां पर चल रहे हैं आंट जेनिफर के टाइगर्स? अक्रॉस अ स्क्रीन. अब जैसे ही हम यहाँ स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ हमें ये बात समझ में आती है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो कहां पर हैं. बेसिकली आंट जेनिफर यहाँ पर एक पीस ऑफ क्लॉथ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. आप ये देखिए इस पिक्चर को. एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? आप में से ज्यादातर बच्चे इस बात को समझते भी होंगे कि एम्ब्रॉयडरी क्या होती है. इसे हिंदी में हम कहते हैं कढ़ाई. इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि एक निडल से और एक थ्रेड से एक कपड़े के ऊपर आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी. तो आप ये देखिए इस तरह से एक फ्रेम लिया जाता है और उस फ्रेम के अंदर कपड़े को फिट किया जाता है, और ये स्क्रू है इससे इसे टाइट कर लेते हैं ताकि ये जो कपड़ा है ये एक फ्रेम की तरह से, एक स्क्रीन की तरह से हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट.
और इसके ऊपर आप निडल से, थ्रेड से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। इस तरह से कोई भी पैटर्न बन सकता है। तो हमारी इस प्रेजेंट पोएम में जो आंट जेनिफर हैं वो क्या पैटर्न बना रही हैं इस कपड़े के टुकड़े पर, स्क्रीन के ऊपर? वो बना रही हैं कुछ टाइगर्स। और वो जो उनके टाइगर्स हैं, दे आर नॉट सिटिंग, दे आर प्रांसिंग। देखिए इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। दे आर प्रांसिंग मीन्स दे आर मूविंग इन अ लेजर मैनर, दे आर मूविंग अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब यहां इस सेकेंड लाइन में पोएट ने एक्सप्लेन किया है उन टाइगर्स के बारे में। दे आर ब्राइट, चमकीला रंग है उनका। किस तरह का रंग है चमकीला? टोपैज के जैसा। अब टोपैज जो है ये एक प्रेशियस स्टोन होता है। देखिए, अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। कुछ लोग इसको रिंग में, कुछ लोग इसको नेकलेसेस में पहनते हैं। तो ये देखिए, ये पिक्चर है टोपैज की। इस तरह का स्टोन दिखाई देता है। ये एक स्टोन है जिसका कलर है येलो। और जब आप इसके कलर को देखोगे, दैट इज ब्राइट येलो कलर, तो आपको ध्यान में आएगा कि जो टाइगर है बेसिकली उसका भी जो कलर होता है वो किस तरह का होता है? यस, ब्राइट येलो कलर, जस्ट लाइक द कलर ऑफ ब्राइट टोपैज। दे आर द डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब देखिए डेनिजन, इसका क्या मतलब है? डेनिजन्स हियर एन एनिमल दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो वैसे देखा जाए तो डेनिजन्स का मतलब होता है नेटिव या रेसिडेंट, यानी कि रहने वाले, नागरिक कह सकते हैं हम, या निवासी कह सकते हैं, राइट? निवासी जो है वो बिल्कुल पर्टिकुलर वर्ड है डेनिजन्स के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। सपोज कीजिए मैं भिवानी में रहती हूँ, हरियाणा में रहती हूँ, तो मैं भिवानी की डेनिजन हूं, मैं भिवानी की नेटिव हूं, रेजिडेंट हूं, राइट? तो इस तरह से कोई गुड़गांव में रह सकता है तो वो वहां का डेनिजन हो गया। इसी तरह से जो टाइगर्स हैं वो कहाँ के डेनिजन्स हैं? दे आर द डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहां पर रेफर करता है फॉरेस्ट को। ओके, तो डेनिजन्स का मतलब यहां पर है उस एनिमल से दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कि वो जो टाइगर्स हैं बेसिकली वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हम सबको पता है कि वो पाए जाते हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट में। तो उनका कलर कैसा है? दे आर ब्राइट येलो कलर्ड बीस्ट्स। दे आर द डेनिजन्स मीन्स दे आर द रेजिडेंट्स, और वी कैन से दे आर द नेटिव्स ऑफ द फॉरेस्ट। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब आप देखिए, अभी तो केवल फिजिकल, जैसे फिजिकल अपीयरेंस जो है टाइगर्स की वो एक्सप्लेन की थी पोएट ने, एंड यहाँ पर इस थर्ड लाइन में पोएट मेंशन कर रही हैं कि क्या क्वालिटी है उन टाइगर्स की। दे हियर स्टैंड्स फॉर द टाइगर्स, डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। अब यहाँ पर ये जो मेन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंस रखता है ये मेन। हम समझते हैं इस चीज को कि किस चीज के लिए मेन यहाँ पर आया है और क्या ऐसी क्वालिटी है टाइगर्स की जो आंट जेनिफर डिपिक्ट करना चाहती हैं। आप ही देखिए कि हो सकता है कि जब आंट जेनिफर इन टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही हैं अपने पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर, तो उस समय उन्होंने कोई मेन भी बनाए हैं वहां पर। ओके, कुछ जैसे आदमी हैं और वो जो है पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। इसका मतलब पेड़ के नीचे हो सकता है कि वो जो आदमी है वो छुपकर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये बड़ा क्लियर हो रही है, ये इंडिकेशन हमें मिल रही है कि वो जो आदमी है वो छुपकर क्यों खड़े होंगे टाइगर्स से। यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हंटिंग की। हो सकता है कि वो जो मेन हैं वो हंट करना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं उन टाइगर्स को, लेकिन जो टाइगर्स हैं दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मेन हु आर स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि टाइगर्स जो हैं वो एक फेरोशियस एनिमल्स होते हैं, एक तरह से फेरोशियस एनिमल्स होते हैं। दे आर फियरलेस, दे आर अनअफ्रेड, सो दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। चाहे तो वो जो आदमी है ये उन्हें पता है कि अच्छे से कि वो जो आदमी है उनका शिकार कर लेंगे, बट स्टिल टाइगर की एक क्वालिटी है कि इट इज अ फियरलेस एनिमल। तो वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं उन आदमियों से जो कि उनको हंट करने के लिए आए हैं, जो कि उनका शिकार करने के लिए आए हैं। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। पेस का मतलब मूव इन अ लेजरली मैनर। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब स्मूथ या एलिगेंट, और शिवेलरिक का मतलब बीइंग कर्टियस स्पेशली टू विमेन एंड एक्ट ऑफ जेंटलमैन। तो आप ये देखिए, शिवेलरिक का जो मतलब है इसे थोड़ा सा मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगी आपको। शिवेलरिक का मतलब होता है आउट ऑफ कर्टसी। जब जैसे मान लीजिए कोई जो जेंट्स हैं वो लेडीज के साथ बहुत ही कर्टियसली बिहेव करते हैं,
उनके साथ बहुत ही ऑनर्ड मैनर में बात करते हैं, एटिकेट्स के साथ बात करते हैं, सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं, एंड साथ के साथ दे आर ब्रेव, दे आर कॉन्फिडेंट। तो हम कहते हैं कि ये क्वालिटीज होती हैं बीइंग चिवलरिक। ओके, तो जो टाइगर्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि दे मूव इन अ लेजरली मैनर, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। ओके, इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, स्लीक का मतलब वैसे स्मूथ भी होता है, और स्लीक यहाँ पर एलिगेंस के लिए आया है, शानदार तरीके के लिए आया है, मार्वलस तरीके के लिए आया है, कि जो टाइगर्स की जो मूवमेंट है उसे एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरीके से शानदार तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और एक सुंदर बीस्ट होता है ये, इट्स अ ब्यूटीफुल बीस्ट। ओके, एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस, ओके, विथ फुल वी कैन से ऑनर, वो जो एक ऑनर एक महसूस करता है, क्योंकि टाइगर जो है वो काफी पावरफुल एनिमल होता है फॉरेस्ट का, और इस तरह का एनिमल होता है कि जिससे सभी डरते हैं, राइट। तो उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है, उसके पास पूरी स्ट्रेंथ है, पावर है, दे आर ब्रेव, दे आर करेजियस, दे मूव विथ फुल कॉन्फिडेंस देयर। सर्टेनिटी, यू सी, सर्टेनिटी का मतलब निश्चित तौर पर, यानी कि उनको किसी भी चीज का डाउट नहीं है, दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। तो इस तरह से वो टाइगर्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ इस स्टेंजा में मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आंट जेनिफर जो हैं वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर क्यों कर रही हैं, क्यों वो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं पीस ऑफ क्लॉथ पर। तो आप ये देखिए बेटा, मैंने पोएम की इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया था कि आंट जेनिफर जो हैं वो ऐसी लेडीज को सिंबलाइज कर रही हैं, यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं हु आर ऑप्रेस्ड, ओके, एंड हु आर डोमिनेटेड, हु आर कंट्रोल्ड बाय देयर मेल काउंटरपार्ट्स, राइट, जो अपनी मैरिज में खुश नहीं है, जो विक्टिम्स हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। तो आंट जेनिफर बेसिकली जो है वो अंदर से खुश नहीं है, शी इज फीलिंग ऑप्रेस्ड, she is feeling dominated, she is feeling controlled by her husband, right? तो इसलिए आंट जेनिफर अगर किसी चीज को ड्रॉ कर रही हैं, किसी चीज के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं, तो वो जो उसकी इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने जो चैनल यूटिलाइज किया है, दैट इज द टाइगर्स। इसीलिए आंट जेनिफर टाइगर का पैटर्न अपनी पीस ऑफ क्लॉथ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसकी, ताकि वो अपने आप को एसोसिएट कर पाए उन टाइगर्स के साथ, राइट। क्योंकि अंदर से आंट जेनिफर चाहती हैं कि वो उन टाइगर्स की तरह से ब्रेव बने, फेरोशियस बने, फियरलेस बने, कर्टियस बने, कॉन्फिडेंट बने। लेकिन एक्चुअली जो है उसकी रियलिटी क्या है ये हम देखेंगे सेकेंड स्टेंजा में। देखिए सेकेंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ रियलिटी है आंट जेनिफर की। फर्स्ट स्टेंजा में हमने डिस्कस किया था कि आंट जेनिफर का ड्रीम क्या है बेसिकली, ओके। आंट जेनिफर का ड्रीम क्या है कि वो टाइगर्स की तरह से ब्रेव बनना चाहती हैं, टाइगर्स की तरह से फियरलेस बनना चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है आंट जेनिफर की लाइफ की, कि हर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। अब देखिए फ्लटरिंग का क्या मतलब है। फ्लटरिंग का मतलब होता है टू मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस एज इफ बीइंग एजिटेटेड। फ्लटरिंग कौन करता है? फ्लटरिंग आपने सुना होगा कि जो जैसे बटरफ्लाई है या जो पक्षी है दे फ्लटर, ओके, वो फड़फड़ाते हैं अपने विंग्स को, राइट। तो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं दोज आर शेकिंग, वो भी हिल रही हैं। कहां पर हिल रही हैं? थ्रू हर वुल। वुल का मतलब उन्होंने जो ऊन या जो थ्रेड जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो पकड़ी हुई है। तो उस ऊन को पकड़ते समय, उस थ्रेड को पकड़ते समय आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं दे आर शेकिंग। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उनकी जो उंगलियां हैं इतना ज्यादा शेक कर रही हैं कि उनसे जो निडल है, जो सुई है, जो कि आइवरी मीन्स हाथी के टस्क की बनी हुई है, एलिफेंट टस्क की बनी हुई है, हाथी के दांत की बनी हुई है, वो भी जो है पकड़ी नहीं जा रही। हार्ड टू पुल, शी इज अनेबल टू पुल द निडल अक्रॉस हर पीस ऑफ क्लॉथ, ओके, वाइल मेकिंग दैट एम्ब्रॉयडरी शी इज अनेबल टू पुल दैट निडल, आइवरी निडल। कितनी हल्की होती है सुई आपको पता है, कितना हल्का होता है उसका थ्रेड, उसकी वुल। लेकिन आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो उसे भी पकड़ नहीं पा रही हैं, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, दोज फिंगर्स आर शेकिंग।
तो क्यों शेक कर रही हैं आंट जेनिफर की फिंगर्स, क्यों फ्लटर कर रही हैं आंट जेनिफर की फिंगर्स? आप सोच सकते हो, यस, बिकॉज शी इज फीलिंग क्वाइट वीक इनसाइड। जो बर्डन है मैरिज का, जो टॉर्चर है जो कि उसके हस्बैंड उसे करते हैं, उस टॉर्चर की वजह से शी इज अनेबल टू डू दिस सिंपल टास्क ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग। ओके, दैट्स व्हाई शी इज फीलिंग हरसेल्फ unable to pull that ivory needle across the piece of cloth. The massive weight of uncle's wedding band, देखिए यहां पर आंसर दे दिया है पोएट एड्रियन रिच ने कि the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. अभी देखिए कि किस तरह से जो अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका मैसिव वेट जो है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैसिव का मतलब होता है हैवी, वेट आप समझते ही हो, भार। अंकल्स वेडिंग बैंड का क्या मतलब है? अब ये बात तो आपको पता ही है कि जैसे जब किसी की शादी होती है तो उन्हें एंगेजमेंट के तौर पर रिंग पहनाते हैं। तो यहाँ अंकल वेडिंग बैंड का क्या मतलब है? वेडिंग का मतलब शादी और बैंड का मतलब यहाँ पर है रिंग। ओके, तो जो अंकल हैं उन्होंने जब आंट जेनिफर के साथ उनकी शादी हुई थी, अंकल का मतलब यहाँ पर आंट जेनिफर्स हस्बैंड। तो आंट जेनिफर के हस्बैंड और आंट जेनिफर की जब शादी हुई थी तो उस समय उन्होंने उन्हें एक रिंग पहनाई थी, दैट वाज द सिंबल ऑफ देयर मैरिज। लेकिन वो जो रिंग जिस समय अंकल ने आंट जेनिफर को पहनाई, मीन्स उनके हस्बैंड ने आंट जेनिफर को पहनाई, तो वो जो रिंग थी दैट वाज क्वाइट मैसिव, दैट वाज क्वाइट हैवी। और वो जो हैवी रिंग है वो आज भी आंट जेनिफर की फिंगर के ऊपर है, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। कहने का क्या मतलब है? देखिए बेटा, समझिए इस चीज को कि जब भी कोई शादी करता है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि दिस मैरिज विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन हिज और हर लाइफ। एंड जेनिफर ने भी जब शादी की होगी अपने हस्बैंड से तो यही सोचा होगा कि हर लाइफ विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उसका ऑपोजिट, कि आंट जेनिफर के हस्बैंड ने उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्हें कोई भी राइट्स, कोई भी फ्रीडम, कोई भी हैप्पीनेस अपनी लाइफ में नहीं मिली अपने हस्बैंड से। तो उनको क्या लगता है कि जब से उनकी शादी हुई और उन्होंने ये रिंग उन्हें पहनाई तो तब से लेकर आज तक उनकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, और इस रिंग के कारण से वो जो है बंध गई, वो एकदम बर्डन्ड हो गई। और वैसे भी आपको पता है रिंग का क्या मतलब होता है? रिंग का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, कि दैट पर्सन इज एंगेज्ड, दैट पर्सन इज बॉन्डेड। ओके, ही इज कनेक्टेड टू हिज और हर काउंटर पार्ट, राइट? तो इस तरह से रिंग का मतलब यही होता है। लेकिन वो जो रिंग है वो एक हैप्पीनेस देने वाली रिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आंट जेनिफर के लिए वो जो बैंड है, वो जो रिंग है, वो बिल्कुल भी खुशी को नहीं यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा, बल्कि वो तो टॉर्चर से भरी हुई लाइफ जो है उसे जी रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं, दैट इज द फाइनल स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो अब पोएट बात कर रही हैं फ्यूचर में क्या होगा आंट जेनिफर के साथ। आपको पता है फ्यूचर में आंट जेनिफर भी, जैसे हर किसी का भी मैन इज मॉर्टल, तो आंट जेनिफर भी मर जाएंगी, राइट? व्हेन आंट इज डेड, तो उस समय की बात कर रही हैं जिस समय आंट जो है उनकी डेथ हो जाएगी। तो एट दैट टाइम हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। टेरिफाइड हैंड्स का मतलब, टेरिफाइड का मतलब यहाँ पर है टॉर्चर्ड, कि उनके जो हैंड्स हैं, उनके हैंड्स ने हमेशा से टॉर्चर सहा है। उन्होंने अपने हाउस होल्ड कोर्स भी किए हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड का टॉर्चर भी सहन किया है। शी वॉज परहैप्स द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस विच हर हस्बैंड डिड टू हर, राइट? तो वो जो हैंड्स हैं दे सिंबलाइज कि उन्होंने कितना ज्यादा टॉर्चर सहा है अपने हस्बैंड का। सो दोज हैंड्स आर टेरिफाइड। जिस समय उनकी डेथ होगी तो उनके हैंड्स भी जो हैं वो ऐसे ही लाई करेंगे, लटक जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, लेकिन तब भी उनके जो हैंड्स हैं वो क्या होंगे? दैट विल बी रिंग्ड। वो रिंग जो है वो अब भी उनके हैंड्स के अंदर, उनकी फिंगर्स के अंदर होगी, उनकी फिंगर के अंदर होगी। किस चीज को सिंबलाइज कर रही है वो रिंग? ऑडियल्स को। शी वॉज मास्टर्ड बाय। ऑडियल्स का मतलब एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस। यहां पर हम ऑडियल से समझ सकते हैं जो कठिनाइयां, जो हार्डशिप्स, जो बाधाएं उसकी लाइफ में आई बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। सो दोज आर द ऑडियल्स, दोज आर द टॉर्चर्स ऑफ हर हस्बैंड, राइट?
तो जो हस्बैंड ने टॉर्चर्स किए जिनसे कि उनको कंट्रोल किया, मास्टर्ड बाय का क्या मतलब है? देखिए जो रिंग्ड वर्ड है, ऑडियल्स वर्ड है, मास्टर्ड बाय जो वर्ड है, ये सब वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से एक टॉर्चरस लाइफ आंट जेनिफर ने जी है, राइट? और सारे की सारी लाइफ में उसको कोई भी खुशी नहीं मिली। एंड वन मोर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड्स हियर इज, आप समझने की कोशिश कीजिए कि रिंग जो है यहाँ पर या मास्टर्ड बाय जो वर्ड्स है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। रिंग का मतलब हम यहाँ पर ले सकते हैं सर्कस रिंग से, राइट? और आंट जेनिफर ने, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजा में बताया था, जब उन्होंने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर किया है एक पीस ऑफ क्लोथ पर, तो वो ये चाहती हैं कि ये उनकी अंदर से इनर मोस्ट डिजायर है, ये उनकी क्रेविंग है, उनकी हार्ट की डिजायर है कि शी वांट्स टू बिकम जस्ट लाइक द टाइगर्स हु आर फियरलेस, हु आर अनअफ्रेड, हु आर ब्रेव, हु आर स्ट्रांग, राइट? लेकिन वो जो टाइगर है, अगर हम सर्कस रिंग की बात करें तो सर्कस रिंग में एक रिंग मास्टर होता है और वो रिंग मास्टर उन टाइगर्स को कंट्रोल करता है। ही whips एंड द टाइगर एक्ट्स, राइट? तो वहां पर जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अंदर से ये लगता है कि इतना ज्यादा फेरोशियस एनिमल, ये बीस्ट किस तरह से मास्टर कर लिया है इस रिंग मास्टर ने, राइट? तो रिंग मास्टर जो कि एक मैन होता है, राइट, आदमी होता है, वो हमें पता है कि बिल्कुल कम ताकतवर है उस टाइगर से, लेकिन स्टिल वो उसे मास्टर कर लेता है, उसे कंट्रोल कर लेता है। तो सेम यही फीलिंग आंट जेनिफर के मन में है कि आंट जेनिफर अंदर से बहुत मजबूत है, बहुत ब्रेव है, लेकिन फिर भी उनकी इन सब क्वालिटीज को इफ वी कीप देम असाइड, उसके हस्बैंड ने उसे कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ रिंग मास्टर जो है वो हस्बैंड हो जाता है और जो वो टाइगर है वो तो मैंने आपको बताया ही था कि आंट जेनिफर खुद को यहाँ एज टाइगर्स देख रही हैं। तो इस तरह से जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी जो हैंड्स हैं उनमें अब भी अंकल की दी हुई वो रिंग होगी, जो कि ये सिंबलाइज करेगी कि किस तरह से आंट जेनिफर ने थ्रू आउट हर लाइफ टॉर्चर्स को सहा है। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो देखिए आंट तो मर जाएंगी और उनके टेरिफाइड हैंड्स जो है वो भी लाई डाउन करेंगे और उनके साथ जो है उनके जो टॉर्चर्स हैं वो भी अब भी हमें दिखाई देंगे, उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है वो भी हमें दिखाई देगी, उनकी जो प्लाइट थी पूरी मैरिड लाइफ में वो अब भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने अपने पैनल पर बनाए हैं, राइट, पैनल आप समझ गए, दैट इज स्क्रीन, पीस ऑफ क्लोथ, वो जो बनाए हैं उन्होंने टाइगर्स, will go on prancing, proud and unafraid. कहने का क्या मतलब है कि जो टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो अब भी प्रांस कर रहे होंगे, जंप कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है वो तो एक पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, राइट? एंड दैट कैन कंटिन्यू टू बी लाइक दैट फॉर द नेक्स्ट 100 years, ओके, और इवन मोर देन दैट। तो वो जो पीस ऑफ क्लोथ है जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी की गई है, वो जो टाइगर्स हैं, दे विल एग्जिस्ट ऑन दैट पैनल फॉर एवर, और वो हमेशा ही प्रांस करेंगे, मीन्स दे जंप, they'll jump, they will move around proudly, okay, with proud, with courage, with confidence, with high esteem, they will move and unafraid, and they will never be afraid of anything, right? So this was the complete explanation of the poem. और अब हम डिस्कस कर लेते हैं सभी लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट एंड विल डिस्कस ऑल दिस लिटरेरी डिवाइसेस स्टेंजा वाइज। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस पोएट ने यूज किए हैं 2000। सबसे पहले आप राइम स्कीम देख लीजिए पोएम की। राइम स्कीम जो है थ्रू आउट द पोएम वो सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा इज लाइक दिस। फर्स्ट स्टेंजा के लिए आप देखिए, इट इज ए ए बी बी। अब ए ए स्क्रीन एंड ग्रीन एंड बी बी ट्री सर्टेनिटी। अब आपको पता है कि राइम स्कीम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी पोएम में। राइम स्कीम के लिए हम देखते हैं जो स्पेशली हमारा जो लास्ट वर्ड है लाइन का उसे, राइट? तो आप देखिए फर्स्ट जो लाइन है उसमें जो लास्ट वर्ड है दैट इज स्क्रीन। सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है ग्रीन, तो स्क्रीन ग्रीन, वी गिव देम ए ए। देन वी हैव ट्री इन द थर्ड लाइन एज द लास्ट वर्ड एंड सर्टेनिटी as the last word of the fourth line. So tree, certainty. We give them B, B. So the rhyme scheme of the first stanza becomes A, B and B. Now, second literary devices used in the first stanza is anaphora. Anaphora क्या है? Anaphora is the use of same word in two consecutive lines. एक ही word को हम जब दो लगातार lines के अंदर use करते हैं तो उसे कहते हैं anaphora. तो they do not and they pace in, okay? ये जो words हैं they stand for anaphora in this stanza. Then we have metaphor. Metaphor
यूज ऑफ टोपैज टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर्स, ब्राइट टोपैज। मेटाफर आपको पता ही है क्या होता है। यस, मेटाफर जो है वो होता है जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किन्हीं भी दो चीजों का, जो वैसे तो अलग अलग होती हैं लेकिन फिर भी जो है उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है। एंड वी डोंट यूज द वर्ड्स एज और लाइक हियर, क्योंकि कंपैरिजन हम सिमिली में भी करते हैं, लेकिन सिमिली में कंपैरिजन करते समय हम एज और लाइक इन दो वर्ड्स का यूज करते हैं, जबकि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो यहां पोएट ने कहा ब्राइट टोपैज डेनिजन्स। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स का मतलब कि एकदम येलो कलर के नेटिव्स हैं, रेजिडेंट हैं, कहां के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। तो द कलर ऑफ द टाइगर इज कंपेयर्ड विद द ब्राइट टोपैज, राइट। नाउ come to the second stanza and let us see the literary devices. Let us analyze the literary devices used in the second stanza. Again the rhyme scheme is AABB. AABB we give it like this ki wool, pull, AA, then band, hand, BB, right. Then we have alliteration here. Alliteration क्या है? Alliteration आपको पता ही है कि consonant sound जब repeat होती है closely connected words में तो उसे alliteration कहते हैं। यहाँ पर first sound is repeated, finger fluttering, right. First sound is repeated, so alliteration is used here. Now let us analyze the literary devices of the third stanza. Again the rhyme scheme is like AABB, lie, buy, mate, unafraid. These words are rhyming, and then we have alliteration here. Per sound is repeated in prancing, proud. Okay, so this was all about the literary devices. Now let us discuss the theme of the poem. The poem revolves around the desires and the depressingly harsh realities of Aunt Jennifer's existence, using sharp contrasts between the tigers and herself. अब ये आपको पता ही है कि जो पोएम है वो रिवॉल्व कर रही है जो आंट जेनिफर की डिजायर्स हैं और जो उसके जीवन की जो कड़वी सच्चाइयां हैं, हार्श रियलिटीज हैं, इन सब बातों के बारे में ये पोएम डिपिक्ट कर रही है। और पोइट ने एक शार्प कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया है टाइगर के बारे में और उसके बारे में, राइट। मींस टाइगर्स जो है वो बना रही है टाइगर्स को, वो चाहती है टाइगर्स के जैसा बनना। दिस इज द इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ हर हार्ट, दिस इज हर इनर मोस्ट डिजायर। लेकिन बेसिकली वो टाइगर्स से काफी कॉन्ट्रास्ट में है। द टाइगर्स अपीयर टू बी इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर पर्सनैलिटी, और जो टाइगर्स हैं वो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। दे आर क्वाइट अपोजिट, दे आर पोल्स अपार्ट। The tiger's actions are smooth, uninhibited and robust. टाइगर के जो एक्शंस हैं वो हमें पता ही है। दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर एलिगेंट, दे आर ऑनर्ड, दे आर they live in a forest where they are the kings of the forest. Robust, they are brave, strong. Aunt Jennifer, on the other hand, has great trouble even to embroider because her movements are so weak. अब टाइगर्स के जो एक्शन है वो इस तरह के हैं जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, वो आराम से चल रहे हैं, वो किसी से भी डर नहीं रहे हैं। लेकिन आंट जेनिफर की कंडीशन क्या है? दैट वी कम टू नो इन द सेकंड स्टैंजा। रिमेंबर कि आंट जेनिफर की कंडीशन ये है कि उसे तो वो जो टाइगर्स, वो जो एक निडल है उसके पास, वो जो थ्रेड है, वो उसे भी अच्छे से पकड़ नहीं पा रही है। शी इज फीलिंग सो वीक, शी इज फीलिंग सो टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड्स टॉर्चर्स। Aunt Jennifer is evidently a lonely, pained old woman plagued by anxiety. और Aunt Jennifer को किस तरह से डिपिक्ट किया है पोइट ने कि वो बड़ी ही लोनली है, अकेली है और वो बहुत ही दुख में है, राइट। और बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी है, तनाव है, स्ट्रेस है, चिंता है। The reason for her miserable plight is the oppressive patriarchal family system wherein the whole soul of the family is the male and it is he who dominates the scene. और क्या कारण है उनकी इस मिजरेबल कंडीशन का? उसका कारण है कि ये जो पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज है, उसका जो सिस्टम है, ये जहां पर एक जो मेल है वो हम कह सकते हैं कि पाइवोट होता है, वो सेंटर होता है सिस्टम का और वो डोमिनेट करता है इन सब चीजों को। एंड शी इज क्रिएटिंग an alternative world of freedom, a world that she longs for, and that's why Aunt Jennifer is creating a world in which she would like to live. किस तरह का वर्ल्ड बना रही है आंट जेनिफर? फ्रीडम का वर्ल्ड बना रही है, उसके लिए वो लॉन्ग करती है, शी डिजायर्स फॉर दैट वर्ल्ड। अब आप देखिए बेटा कि इस पोएम में कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं क्योंकि पूरी की पूरी पोएम सिंबॉलिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंट जेनिफर जो है वो अकेली, ये जो पोएम है आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में या उसके मैरिज एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करती है 1950s की जो यूएसए में, अमेरिका में जो विमेन थी जिनको हर एक चीज के लिए फाइट करना पड़ता था, ओके, और स्ट्रगल करना पड़ता था, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे, उन सब विमेन को रिप्रेजेंट करती है ये पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स। और आंट जेनिफर उन सब विमेन को
का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसी तरह से और भी कुछ सिंबल्स हैं जो इस पोएम में यूज किए हैं, विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ओवर हियर। तो इसेंशियली आप ये देखिए वो सिंबल्स कौन कौन से हैं। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। देन मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेयरिंग बैंड का मतलब है द बर्डन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस। सिट्स हेविली अपॉन आंट का मतलब है हैज लेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हर। रिंग्ड विद ऑर्डियल्स का मतलब है टू गेट एंट्रैप्ड इन हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स। तो जो आंट जेनिफर की लाइफ है उससे आपको क्या सीखने को मिला? जी हाँ, यहाँ ये जो पोएम है ये काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रही है कि जो फेमिनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है पोएट यहाँ पर वो देना चाहती है हमें। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद। आपको पता है आज का ये जो समय है जहां पर हम जैसे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर फीमेल्स को और मेल्स को दोनों को इक्वल राइट्स हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। उस समय फीमेल्स को मेल से काफी इंफीरियर कंसीडर किया जाता था, उनके पास ये सब राइट्स, ये सब चॉइसेस, ये सब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। ओके, एंड इन्हीं सब चीजों को डिपिक्ट करती हुई ये ब्यूटीफुल पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स मैंने आपको एक्सप्लेन की। इट इज कंपोज्ड बाय वेरी 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 फेमस पोएट एड्रियन रिच। और इसी के साथ आपके लिए मेरे पास होमवर्क है कि यू हैव टू ट्राई द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। आप ट्राई कीजिए एंड प्लीज ऑल्सो गेट देम चेक्ड फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव इंग्लिश टीचर्स। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू सो मच।